Good morning, everyone. Welcome in my channel Siddharth's Biology Classes. Today I give you third lecture of cell topic. Let's start. Last हमने देखा था कि structure of cell contain three major parts: plasma membrane and cell wall. Number 2 nucleus. Number 3 cytoplasm. आज हम इसी को सीरीज वाइज स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जैसा कि हमने कहा कि विच पार्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आप डेफिनेटली क्या कहेंगे? स्किन। सिमिलरली सेल का आउटर मोस्ट पार्ट कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट पॉइंट इज outermost layer of the cell is plasma membrane. Plasma membrane क्या है? तो सेल का outermost layer है। Next point, present in the cells of plants, animals and microorganisms. ये plasma membrane हमको plants की बॉडी में, animals की बॉडी में और microorganism की बॉडी में मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा नेम इज न्यू नेम। किसी किसी बुक में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या रिफर करेगा? सेल मेम्ब्रेन। किसी किसी बुक में आपको यूनिट मेम्ब्रेन और एडवांस नेम है इसका प्लाज्मा लेमा। Next, define structure of plasma membrane. So, plasma membrane का structure following types का होता है. Number 1, it is living, thin, elastic, and most important nature is selective permeable membrane. What is characteristics of plasma membrane? So, it is living, thin, इलास्टिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से पता चल रहा है ये कैसी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट मींस दैट ये उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करती है जो बॉडी के लिए क्या है? यूजफुल है। अदरवाइज जो चीज हमारे लिए यूजफुल या फिर बेनिफिशियल नहीं है उसको क्या कर देती है? आउटसाइड से ही रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट, इट इज अबाउट 70 एंगस्ट्रॉम थिक। Thickness of plasma membrane is 70 angstrom. This is unit of angstrom. This is measurement unit. Next, according to chemical analysis, 75% part of total plasma membrane is made up of by phospholipid bilayer. बाई का मीन्स यहाँ पे क्या मतलब होता है? टू। सो इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? फॉस्फोलिपिड्स, अप्रॉक्स 75%। इस फॉस्फोलिपिड्स के हमको कितने लेयर मिलेंगे? 2 लेयर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एंड रिमेनिंग 25% पार्ट इज मेड अप ऑफ बाय प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड। I repeat, 75% part is made up of phospholipids which are bilayer in condition, and remaining 25% part is made up of proteins, cholesterol and polysaccharide. Note down. Next, we discuss about fluid mosaic model. So, in 1972, Singer and Nicholson, two scientists are name is Singer and Nicholson, suggested a model to explain the ultrastructure of plasma membrane. Means 1972 में two scientists थे, one is Singer and second is Nicholson. दोनों ने क्या किया? एक मॉडल को सजेस्ट किया which are
अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया. सो इसका नाम उन्होंने क्या दिया, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. अच्छा, इस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब क्या होता है? सो नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग floating in the sea of lipid. That's why it is called fluid mosaic model. And according to them, plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. उन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है. एंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स present. Number 1, which are present in inner side, and number 2, which are present in outer side. जो प्रोटीन इनर साइड प्रेजेंट था उसको हमने नाम दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन and protein which are present in outside of the cell, it is called outer side extrinsic protein. Please note, so this is the structure of fluid mosaic model. There are 2 layers of phospholipids bilayer which is in red color. तो जो रेड कलर की 2 लेयर है, this is layer of phospholipids because this layer is number 2, 1 and 2. That's why it is called bilayer. There are 2 sides of fluid mosaic model, E phase, C phase. E phase, it means that exoplasm, and C phase is cytoplasm. And thickness of phospholipid bilayer is 20 angstrom. This is also 20 angstrom, and gap between 2 layers is 30 angstrom. Total 20 plus 30 50, 50 plus 20 is known as 70 angstrom thick. Note down. Next, function of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या देखेंगे, फंक्शन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, फॉलोइंग टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. इन डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मींस इन डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूवमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, घर में किचन में मम्मी कुछ टेस्टी बनाती है तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड्स हो जाती है, बिकॉज डिफ्यूजन. हम वाटर में क्या करते हैं, किसी भी कलर को यूटिलाइज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वाटर का जो कलर है, हम जो कलर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाता है. जैसे कि हम पेंटिंग करते हैं तो ब्रश यूज करते हैं, तो जिस भी ब्रश का कलर होता है वाटर भी उसी कलर का हो जाता है. दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन. नेक्स्ट है ऑस्मोसिस. इसका भी डेफिनेशन क्या है, सेम लाइक डिफ्यूजन है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. बट इन ऑस्मोसिस मेजर रोल प्ले करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इन ऑस्मोसिस, ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन.
एंड ऑस्मोसिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी, एक्सो मीन्स कहाँ होगा, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। इन एंडो ऑस्मोसिस एग्जाम्पल इज, जब हम रेजिन्स किशमिश को कहाँ रखते हैं, वाटर बॉल में, तो आफ्टर सम टाइम किशमिश क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, बिकॉज इनसाइड द बॉडी ऑफ किशमिश वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण बाहर का वाटर कहाँ चले गया, इनसाइड द रेजिन्स। सो रेजिन्स क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सोऑस्मोसिस इज, जब हम ग्रेप्स को हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, तो जो ग्रेप्स है वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाएंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन 3 फॉलोइंग मेजर पार्ट्स। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, नंबर 2 न्यूक्लियस, नंबर 3 साइटोप्लाज्म, जिसमें से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अभी जस्ट स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। सो सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। सेल वॉल आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे, प्लांट बॉडी के पार्ट्स में। इन एनिमल सेल वॉल आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेल वॉल कहाँ मिलते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमेशा हमको कहाँ मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल कैसा है, इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल कैसे स्टडी में है, नॉन लिविंग कंडीशन में है, और हमेशा कैसे होते हैं, परमिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। कैसे याद रखेंगे, सो सेल वॉल इज मेड अप बाय सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। नोट डाउन। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या कर रहा है, फॉलोइंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। नंबर 1, इट परमिट टू प्लांट सेल टू बिकम। यह प्लांट सेल को क्या करता है, टर्जिट होने के लिए परमिट प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। थर्ड पॉइंट, it is freely permeable to water and substance in solution। ये वाटर और सोल्यूशन में जितनी भी सब सब्सटेंस है उन सब के लिए कैसा होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, मींस इजिली उसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेल वॉल हैज नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। सेल वॉल में क्या होते हैं, नैरो पोर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्स। नोट डाउन। Next, structure of cell wall. So, structure of cell wall contain 3 parts: primary cell wall and secondary cell wall and middle lamella. Middle lamella, it act like cement. Middle lamella कैसा वर्क करता है, सीमेंट की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली, जैसे ही हमको 2 ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए सीमेंट को फिल करना होता है, सिमिलरली मिडिल लेमेला भी कैसा एक्ट करता है, लाइक अ सीमेंट विच ज्वाइंट टुगेदर प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल।